Hello everyone. Today we'll be starting with the new series of audio recording for all the chapters of class 11th Business Studies. In this I will be covering each chapter individually, making you understand all the topics and the content one by one and also helping you learn this alongside. So let's start with the content. This entire business studies for class 11th is in two parts. First part is the foundation of business, where you will learn what business is, trade, commerce, and what are the various forms of business organizations, and what are the various business services and emerging modes of business. And on the other side, the second part, we have the corporate organization, finance and trade. Basically, how the companies are formed, what are the various sources of business finance, may it be small or a big enterprise, and the internal and external business trade, and the entire procedure for the same. So let's start with chapter 1. Chapter 1 is business, trade and commerce. This entire chapter is also divided into two sections. Section 1, which deals with history of trade and commerce in the ancient India, whereas section 2 deals with the concept, nature and the purpose of business. The first section will be in this first part, and there will be a second audio for the second part. So, starting with the history of trade and commerce, the economic and the commercial evolution of any land depends on its physical environment. And as far as India, being the subcontinent as a whole, which had Himalayas in the north and border by water in the south, a network of road merging into the Silk Route helped, very importantly, please mention this, Silk Route helped in establishing commercial and political contacts with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia. The Silk Route was the entire crux which led to opening up routes in the entire world for India. The commercial cities in ancient times like Harappa and Mohenjo-daro were founded in the 3rd millennium BC. These civilizations were trading in gold, silver, copper, colored gemstones, beads, pearls, etc. Then we'll talk about the evolution of the banking system, the indigenous banking system. And economic life progressed जैसे metal became the supplement other than commodities as money because of its durability and divisibility. Earlier, as you all know, there were animals which were exchanged, there was barter system, but eventually metal के बाद money came into the being because वो easier था as a medium of exchange. And there were also a lot of documents such as hundis and chittis which were used to carry out transactions. अब हुंडीज होता क्या है? बेसिकली ये एक काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो एक्सचेंज में स्पेशली फॉर बिजनेसेस, solely basically for businesses were used in the subcontinent. इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता था which warranted the payment of money, and it was a promise or order which is unconditional. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज होती थी, जैसे काफ़ी नाम थे, धनी जोग, सही जोग, फिरमान जोग, ध्यान जोग, अलग एरियाज़ में अलग नाम से और इनका अलग मतलब था. जैसे धनी जोग था जो, उसके अंदर नो लाइबिलिटी ऑफ हु एवर रिसीव्स द पेमेंट, कोई लाइबिलिटी नहीं होती थी. तो इस टाइप के डिफरेंट होते थे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड नॉट नो व्हाट हुंडीज आर. And they were negotiable in nature. उसके बाद indigenous banking system played a prominent role in lending money and financing domestic as well as foreign trade. उस टाइम पे करेंसी के साथ साथ हुंडीज और लेटर ऑफ क्रेडिट भी इस्तेमाल होता था, और बैंकर्स या सेठ कहा जाता था इन ऑर्गेनाइजेशंस को. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता रहा, टाइम निकलता रहा, देयर वाज राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑल्सो. Who are intermediaries? Intermediaries play a prominent role in the promotion of trade. They provide considerable finance securities to the manufacturers by assuming responsibility for risk involved, especially in foreign trade. It comprises of कौन लोग हैं जो इसमें comprise होते हैं? पहला, commission agent, second, brokers, third, distributors.
जो पर्पस सॉल्व करते थे होलसेलर्स का और रिटेलर्स का। ठीक है जी। तो इंटरमीडिएटरीज कौन है? जो बेसिकली बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए छोटा मोटा लोन दे देते थे। इट इंक्लूडेड कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जगत सेठ्स ऑल्सो डेवलप्ड धीरे धीरे and expressed great influence during the Mughal period and the days of East India Company. Right? So this is about your intermediaries. Then the next part we'll be talking about is transport. Transport by land and water was the most popular in the ancient times. Trade was maintained by both land and sea. Roads as a means of communication had assumed key importance in the entire process of growth. बट ये हुआ कब था? आफ्टर ब्रिटिशर्स हैड कम। उससे पहले लैंड और वाटर रूट्स थोड़े ज़्यादा थे बाहर के लिए। एंड देन मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। मालाबार कोस्ट ऑन विच मुजरीज इज सिचुएटेड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड गोइंग बैक टू द एरा ऑफ रोमन एम्पायर। उस टाइम पे पेपर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था और इसको बोलते थे हम ब्लैक गोल्ड। किस टाइम में? मैरीटाइम में, मालाबार कोस्ट से मुजरिस में। ठीक है जी। देन उसके बाद वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव रूट्स जो इंडिया को लीड करते थे वॉज मेजरली बिकॉज ऑफ स्पाइसेस। America also discovered, the Columbus who discovered America was because of this spice route जो इंडिया को आता था। राइट एंड इन द 15th सेंचुरी इसको फाउंड किया गया था एंड ऑल्सो बाय वास्को ड गामा टू द शोर्स ऑफ मलाबार इन 1498। सो कोलंबस 15th सेंचुरी में इंडिया ढूंढता ढूंढता ही डिस्कवर्ड अमेरिका एंड वास्को ड गामा केम टू द शोर्स ऑफ इंडिया मलाबार में 1498 में। और भी बहुत जगह पे ट्रेड हो रहा था, जैसे कैलिकट जो कि चाइना को बहुत रिलेट करता था बट नॉट टू इम्पॉर्टेंट। Then lot of trading communities were there. In different parts of the country, different communities were dominated. जैसे पंजाबीज थे और मुल्तानी थे मर्चेंट्स। ठीक है, जो कि हैंडल करते थे नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन को कौन हैंडल कर रहा था? पंजाबी और मुल्तानी। उसके बाद भट्ट्स थे जो मैनेज करते थे स्टेट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया के अंदर वी हैड महाजन्स। ये सरनेम्स हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चट एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडर थे साउथ के, और अर्बन सेंटर्स में सच एज अहमदाबाद में द महाजन कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय देमसेल्व्स एज एंड कॉल्ड देमसेल्व्स एज नगर सेठ। और भी छोटे छोटे प्रोफेशंस थे जिनके बारे में बात होती थी। हकीम जो कि वैद जो कि फिजिशियंस होते हैं, वकील लॉयर, पंडित और मुलाना टीचर्स होते थे एंड ऑल दीज। सो पंजाबी एंड मुल्तानी नॉर्थ में, भट्ट्स गुजरात वाली साइड और राजस्थान, महाजन्स इन द वेस्टर्न एरियाज और जाट इन द साउथ, चट। ठीक है जी। देन मर्चेंट कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम बात करें, it also delivered power and prestige from guilds, which were autonomous corporations formed to protect the interest of the traders. अब इतना ट्रेड हो रहा था तो there was an importance or requirement of people who could manage this trade, right? So trade and industry, taxes were also being the major revenue. Traders को पे करना पड़ता था ऑक्ट्रॉय, कई बार कस्टम्स ड्यूटी, डिपेंडिंग बाहर का है ट्रेड, इनलैंड है, तो इन सबको मैनेज जो कर रहे थे वो थे मर्चेंट कॉरपोरेशंस। छोटे छोटे कॉरपोरेशंस बन गए थे जो हर चीज़ का हिसाब किताब रख रहे थे। फ्रेम किए थे उन्होंने बहुत सारे रूल्स, प्रोफेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, और वो अपने को राजा समझते थे। देन वी हैड मेजर सेंटर्स। ध्यान से सुनेंगे, मेजर सेंटर्स मैं एक एक करके बताऊंगी। पहला था पतलीपुत्रा, पाटलिपुत्रा भी कहा जाता है, जिसको आज हम पटना से जानते हैं। मेजर सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स होता था यहाँ पे। पाटलिपुत्रा, पटना, पत्थर स्टोन। पेशावरी सेकेंड नंबर पे, पेशावरी, ठीक है, जिसके अंदर वूल का एक्सपोर्टिंग होता था और इंपोर्ट होते थे हॉर्सेस। इंडिया में हॉर्सेस बहुत इंपोर्ट होते थे।
और फिर आया तकसीला। तकसीला अगर आपको पता हो एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर। इट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ इम्पॉर्टेंट लैंड रूट्स। बेसिकली तकसीला सेंटर में था, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूट्स को खुलता था तकसीला। फाइनेंशियल सिटी एंड कमर्शियल बैंक्स थे यहाँ पर। इट इज़ नोन एज द फाइनेंशियल सिटी उस टाइम पे। इस सिटी के अंदर मेजर ऑक्यूपेशंस जो लोगों के थे वो थे बुद्धिस्ट सेंटर्स थे लर्निंग के, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी। तो अभी तक हमने 3 करे हैं, पाटलिपुत्र स्टोन्स, पेशावरी वूल और क्या कहते हैं इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस। देन वी हैव तक्षशिला जहाँ यूनिवर्सिटीज़ थी और मेजर सेंटर था। फिर आया इंद्रप्रस्था जो हमारा सेंटर है दिल्ली। तो उस टाइम पे इसको इंद्रप्रस्था कहते थे। ये एक जंक्शन था जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कन्वर्ज करता था सेंटर में। उसके बाद आया मथुरा। मथुरा दिल्ली के इंद्रप्रस्था के पास था। इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हैड सब्सिस्टेंट कमर्स। ठीक है जी। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड भरूच। तो ये भी काफ़ी सेंटर में था, तो एक सेंटर सिटी थी जहाँ लोग आकर अपना ट्रेड करते थे। छठा है हमारे पास वाराणसी। वाराणसी इज़ अ प्लेस बोथ ऑन गंजेटिक रूट्स एंड ऑन हाईवेज दैट लिंक नॉर्थ विद द ईस्ट। अंडरस्टैंड, नॉर्थ विद द ईस्ट। जो मथुरा है वो साउथ को करता था, ये ईस्ट को करता है। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेजर सेंटर था एंड दे बिकेम फेमस फॉर गोल्ड, सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप। राइट, वाराणसी में क्या था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेसिकली। देन वी हैव मिथिला। द ट्रेड ऑफ मिथिलिया क्रॉस्ड बाय सीज एंड बोट्स। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास आइलैंड्स को कनेक्ट करने के लिए मिथिलिया था। जावा, सुमित्रा, ब्रुनुया, तो ये सब कनेक्ट करते थे आइलैंड्स को। तो वहाँ तक सामान यहाँ से पहुँचता था बोट्स के थ्रू। फिर आया उज्जैन। इजेट, क्रिनेलियम, मुस्लिन एंड मालो क्लॉथ। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ हैं जो उज्जैन से एक्सपोर्ट किए जाते थे डिफरेंट सेंटर्स पे और आगे वहाँ से निकलते थे बाहर के देशों में। फिर आया सूरत। सूरत का हमें पता है वहाँ पर गोल्ड जरी का काम बहुत फेमस था, क्राफ्टमैनशिप वहाँ की। और वहाँ हुंडीज़ इतनी दूर दूर की, इजिप्ट की और ईरान की हुंडीज़ भी ऑनर की जाती थी। हुंडीज़ मैंने आपको बताया था क्या होती हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि बिजनेस में काम होती थी, यूज़ होती थी। फिर है कांची। कांची के अंदर टुडे नोन एज कांचीपुरम। ठीक है, वहाँ की साड़ियाँ वैसे बहुत फेमस होती हैं। वहाँ पे पर्ल्स, ग्लास, रेयर स्टोन और गोल्ड और सिल्क भी, क्योंकि मैंने कहा ना साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ कांची की बहुत ज़्यादा, कांचीवरम की फेमस हैं, तो वहाँ की थी। फिर है मदुरई। मदुरई के अंदर ट्रेड किया जाता थे पर्ल फिशरीज ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार, मदुरई में। ठीक है जी। और नेक्स्ट है ब्रोच। ब्रोच मैंने आपको पहले भी नाम दिया था मथुरा का। ये सेंटर था जो कि कनेक्ट करता था वेस्टर्न इंडिया को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कावेरी पट्टा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन सिटीज़ की प्रोवाइड की जाती थी। अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ ऑफ मर्चेंडाइज। बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स का हेडक्वार्टर था ये सिटी और कन्वीनियंट प्लेस थी फॉर ट्रेडर्स लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और दूर दूर ईस्ट से भी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बाहर के सिटीज़ से यहाँ पर आके ट्रेड की जाती थी। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सेंट्स, सिल्क, वूल, ये सब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बाहर के देशों का हेडक्वार्टर रहा। फिर है तमरालिपट्टी। ये एक ग्रेटेस्ट पोर्ट था सी के थ्रू जो कि कनेक्ट करता था बाहर के देशों को, वेस्ट और ईस्ट को और लिंक करता था बनारस और तक्षशिला को। सो ये हमारे पास 14 डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ से मेजर ट्रेड होता था। अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बताऊँ आपको, पटलापुत्री, पेशावरी, तक्षशिला, ठीक है जी, इंद्रप्रस्थ क्योंकि सेंटर है दिल्ली था, वाराणसी और उसके बाद उज्जैन, सूरत एंड कवरीपत्ता और तिमरालापट्टी। राइट। उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिया में क्या था, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक्सपोर्ट में 2-4 भी लर्न कर लें, दैट इज़ सफिशेंट। स्पाइसेस, व्हीट, इंडिया में यही बेस्ट मिलता है, शुगर, इंडिगो, ओपियम, ये बहुत हैं। और इंपोर्ट की बात करें अगर, हॉर्सेस, इंडिया में हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ सिल्क, फ्लैक्स, लेनिन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर काफ़ी आता था।
तो ये सब हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात हुई. देन वी हैव द पोजिशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी. क्या हाल था इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे ट्रेड का फ्रॉम फर्स्ट एडी अप टू 1991. फर्स्ट सेंचुरी से 7th सेंचुरी CE तक इंडिया एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड द मिडीवल वर्ल्ड. इट कंट्रोल्ड अबाउट 1/3, गाइज प्लीज़ ध्यान सुनिए, 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ हमारे पास था और ट्रेड भी हो रहा था. इसीलिए इंडिया को स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्णद्वीप कहा जाता था बाय लॉट ऑफ स्कॉलर्स. प्री कलोनियल पीरियड, जब तक ब्रिटिशर्स डिड नॉट एंटर इंडिया, वी हैड अ हिस्ट्री, आवर एज ऑफ वॉज ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही थी, ग्रो कर रही थी, बहुत अच्छे लेवल पे थी. ठीक है जी. एंड वी embarked a great voyage of discovery via European countries. They were liking what we were selling. But it was evident that in the 18th century, India was far behind Western European. Why Western Europe से हम पीछे थे? Because of technology, innovation एंड आइडियाज़ हमारे पास बहुत कम थे. विद द इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, उसके बाद जब 18th सेंचुरी आ गया, इट कॉज लैक ऑफ फ्रीडम एंड नो अक्रंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन. हमें उन्होंने दबा लिया था बहुत गंदी तरह से. ठीक है जी. फिर जब ब्रिटिश एम्पायर हमारे इंडिया में रूल करना शुरू हुआ विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सारा रेवेन्यू जो हमें बाहर के देशों से आ रहा है एक्सपोर्ट करके, जो बेसिकली हमारा रिसीट्स थी वहाँ से, वॉज used in purchasing India का raw material, spices and goods which were getting back to Europe. That money which was coming from exports was used for the invisible items, for warfare, for all those things जो UK को ज़रूरत थी, ना कि हमारी. तो कंटिन्यूस जो इनफ्लो पैसे का हो रहा था, बुलियंस ऑफ मनी का, दैट वाज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया बट वाज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ UK. फिर इंडिया बिगैन टू री इंडस्ट्रियलाइज. कब? आफ्टर दे लेफ्ट अस इन 1947. हमने यहाँ पर 5-year प्लान्स बनाने शुरू किए. हमने अपनी इकोनॉमी को एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के हिसाब से चलाया कि अब सरकार सारा ध्यान रखेगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई इंडस्ट्री को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को. बट ये सब भी was not sufficient for India. Why? Because there was a lot of corruption, there was a lot of red tapeism, bureaucracy, because everybody was so indulged in making money for themselves and not doing benefit of the country. So hence, despite the entire capital formation, ठीक है, rising population, huge expenditure on defense, inadequate infrastructure, all these reasons led to derailing India. And eventually in 1991 we were in great debt and we had to beg who? हमारे को वर्ल्ड बैंक और IMF को बेग करना पड़ा कि आप हमें प्लीज़ थोड़ा सा पैसा दे दो लोन पे, ताकि हम अपनी कंट्री रन कर सकें. एंड दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर, इट वाज द कांग्रेस की अपनी सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. सो ही ड्राफ्टेड द एंटायर पॉलिसी विच इज़ नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और द लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन 1991, एंड दैट गॉट अस अ लिटिल रिलीफ. लॉट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया. हमने यहाँ पे बड़े तगड़े तगड़े प्रोग्राम्स बनाए, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया. They played a major role, and that is how our trade and the entire economy started lifting up. So this is your entire content on the section 1 of business, trade and commerce, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ से था, हमने एंशिएंट इंडिया में कहाँ से शुरू किया. आई जस्ट गिव यू स्मॉल रिकैप. सिल्क रूट के बारे में बात की हमने, फिर उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में हमने हुंडीज़ और चिट्टीज़ की बात करी, और क्या कहते हैं, और इंटरमीडिएटरीज जो आ रहे थे वो कौन कौन थे? कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. ट्रांसपोर्ट के अंदर वी हैड बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, जिसमें ब्लैक गोल्ड पेपर होता था जो कि मलाबार कोस्ट से काफ़ी ज़्यादा रोमन एम्पायर में जाता था. देन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जगह अमेरिका की हो गई बाय कोलंबस इन द 15th सेंचुरी. ढूंढने बेचारा क्या आया था, कहाँ आके फंसा, और वास्को ड गामा ने 1498 में इंडिया को
मालाबार कोस्ट से पिकअप किया. तो यू कैन गेट सच क्वेश्चंस इन द MCQs एज फिलअप्स और MCQs, है ना. सो फिर उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कम्युनिटीज़, यू नो, विच वर स्ट्रेंथन, पंजाबीज एंड मुल्तानीज विच वर इन द नॉर्थ, भट्स इन द गुजरात एंड राजस्थान रीजन, महाजन्स इन द अपना वेस्टर्न रीजन्स, चार्ट्स इन द सदर्न रीजन्स एंड अर्बन एरियाज़ में महाजन्स जो अपने आप को नगर सेठ मानते थे. उसके बाद मर्चेंट कॉरपोरेशंस बनी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड हो रहा था. देवर समवन वी नीडेड, you know, to keep a check on stuff, on the traders, on the taxes. So the corporation started coming up. Then we talked about all the major trade centers. I think you should learn at least partly few of them and know what they do. At least you can, sometimes they can just ask you a direct question, right? And then the major export or import किन चीज़ों में हो रहा था. And lastly we talked about the position of Indian subcontinent in world economy फ्रॉम फर्स्ट AD टू 1991, क्योंकि 1991 में सबसे मेजर रिफॉर्म आई थी विच इज़ नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. सो दिस इज द एंटायर क्रक्स ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर 1. सी यू, stay tuned. We'll check you in, we'll get you the second section very soon. And for more, please subscribe my channel for more videos. Thank you. Bye.